جان رحمت نے بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم کھڑے ہوئے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دے دوں، کیا بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ آقا علیہ السلام سے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما ہی، آقا کو کیا بڑا گناہ ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا، یہ دونوں بڑے گناہوں میں شامل ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے شہدائیوں آقا کریم علیہ السلام ابو داؤد شریف کی حدیث سے بات ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں ابو ہریرہ اس حدیث سے بات کی راوی ہے، فرمایا رغم انتو رغم انتو رغم انتو قیل من یا رسول اللہ قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما فلم يدخل الجنہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر نبوت پہ جلوہ افروز ہے، مسجد نبوی ہے، آقا کھڑے ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں اس کو شخص برباد ہو گیا، وہ بندہ ہلاک ہو گیا، وہ بندہ ہلاک ہو گیا، وہ بندہ برباد ہو گیا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ السلام کون سا بندہ برباد ہو گیا؟ آقا جس کے بارے میں دعائے ہلاکت فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ برباد ہو گیا جس نے بڑھاپے کے عالم میں اپنے ماں باپ کو پایا یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کیا، وہ بندہ برباد ہو گیا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اور یاد رکھو ایک صحابی آنے میں بڑی تیزی سے گفتگو کرتا جا رہا ہوں، میرا وقت سماپت ہونے جانے کے قریب ہے، میں عرض کرتا چلوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہدائیوں آقا کریم اسلام کی حدیث سنو۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام معاویہ بن جہمہ ہے، امام مسلم نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے عن معاویہ بن جہمہ ان جہمہ جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اردت ان اغزو وقد جئت استشرك فقال یا رسول اللہ هل لك من ام؟ قال فالزمها فان الجنة عند رجلها او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت کے شہدائیوں آقا کریم اسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، جذبہ جہاد جن میں موجود ہے، جذبہ جہاد لے کر کے حاضر ہوتے ہیں، قربان دین پر قربان ہونے کا جذبہ لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ اللہ نے جان دی ہے تو دل کرتا ہے دین کی راہ میں نکلوں، خدا کی راہ میں نکلوں اور جان جانے آخری کے سپرد کر دوں۔ آقا یہ اللہ نے جان دی ہے، جان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا دل چاہتا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صحابی کیا جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ جہاد میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں حل لک من ام؟ اے صحابی یہ بتا کیا تیری ماں ہے، کیا تیری ماں موجود ہے؟ عرض کرتے ہیں ہاں یا رسول اللہ ماں موجود ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں فالزمها فإن الجنة عند رجلها، جا جا پھر میدان میں جا کر کے ہاتھ کٹانے کی ضرورت نہیں ہے، جا جا پھر میدان میں جا کر کے سر کٹانے کی ضرورت نہیں ہے، جا جا پھر میدان میں جا کر کے چاند دینے کی ضرورت نہیں ہے، جا جا اپنے ماں کے قدموں سے لپٹ جا، ماں کے قدموں سے لپٹ جا اور ماں کے قدموں کو چوم لے، ان کی خدمت کر لے، ان کی خدمت کو لازم کر لے، اس وجہ سے کہ اللہ نے جنتوں کو ماں کے قدموں کے نیچے عطا فرمایا۔ ایک باپ اپنی زندگی گزارتا ہے ایک نوجوان کو قربان چڑھانے کے لیے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کو بڑا کرتی ہے، کس لیے بڑا کرتی ہے؟ اس لیے بڑا کرتی ہے وہ ماں خون اپنے سینے سے پلاتی ہے، وہ ماں اپنے سینے پہ تجھے لٹا کر کے تجھے پیار دیتی ہے، وہ ماں جو تیری وجہ سے اپنے بستر کو ناپاک کرتی ہے، وہ ماں جو تجھے اپنی تمام دھن کو قربان کر کے تیری پرورش کرتی ہے، اس وجہ سے پرورش کرتی ہے تو بڑا ہو جا اور بیوی کا غلام بن جا، تو بڑا ہو جا چورو کا غلام بن جا، تو بڑا ہو جا ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دے، تو بڑا ہو جا ماں باپ سے اپنے پریوار کو الگ کر لے، تو بڑا ہو جا ماں باپ کو گالیاں دینے پہ اتارو ہو جا، تو بڑا ہو جا ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آنے لگے، کیا اس وجہ سے اب ماں باپ بڑی خدمت کرتے ہیں؟ نہیں، یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو، میں عرض کرتا چلوں کان کھول کر کے سن لو، یاد رکھو بیوی کے غلام ہو، یاد رکھو چوروں کی خدمت کرنے والوں اور ماں باپ کو چھوڑنے
वालों याद रखो, माँ बाप से तेरा रिश्ता वो रिश्ता है जो एक एक से जुड़ा था, जो अजनबिया तेरे लिए अजनबिया थी, जो गैर महरम तेरे लिए गैर महरम थी। एक अजनबिया औरत जिसके लिए तूने कहा दो गवाहों की मौजूदगी में कबूल है, कबूल है, कबूल है, वो अजनबिया तेरी हो गई, वो अजनबिया तेरी महरे राज बन गई, वो अजनबिया तेरी शरीक हयात बन गई। एक लफ्ज से जुड़ा था ये रिश्ता, कबूल है से जुड़ा था। और अगर जिंदगी में भूल से भी किसी भी आलम में किसी भी वक्त में अगर तुमने भूल से अगर ये कह दिया तलाक है, उलमा बैठे हैं, एक बार अगर बीवी को कहा तलाक है, बीवी निकाह से निकल गई, तो बीवी का रिश्ता वो रिश्ता है जो एक लफ्ज के साथ जुड़ा हुआ है। कबूल है कह दिया, बीवी तेरी बीवी बन गई। अगर कह दिया तलाक है तो बीवी तेरी निकाह से निकल गई, बीवी तेरी निकाह से जुदा हो गई, बीवी तेरे लिए गैर महरम बन गई, बीवी तेरे लिए हराम हो गई। याद रखो कि बीवी का रिश्ता है जो एक लफ्ज से जुड़ता है, एक लफ्ज के लिए एक लफ्ज खत्म हो जाता है, टूट जाता है। मगर माँ का रिश्ता वो रिश्ता है, बाप का रिश्ता वो रिश्ता है जो तेरे खून में शामिल है, जो तेरे पीने में शामिल है। याद रख, माँ की खिदमत तुझे जहाँ भी काम आएगी और ये रिश्ता जन्नत तक के तेरे नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानी मैं अर्ज़ करता चलता फिर आपसे बात करता हूँ, गौर से सुनो, पैगाम की बात है। आपने सुना सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, लेकिन जलसे में आने वालों, जलसे में शरीक होने वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इन जश्नों जलसों में आकर के अपनी जिंदगियों में कितना इनकलाब लाते हो। उलमा जो दीन की बातें बताते हैं, अपनी जिंदगी में किस तरह से तुम इन पैगामात को ढालते हो, जरा ये भी तो बताओ। आज हिंदुस्तान के से ज्यादा नेपाल की औरतों के बारे में मैंने सुना है, अल्लाह करे कि हकीकत न हो, मैंने सुना है यहाँ पर्दे का आलम नहीं है, यहाँ पर्दे का माहौल नहीं है। गैर मुस्लिम औरतों की तरह जहाँ जहाँ भी नकाब और बुर्का और हिजाब को अपने सरों पे नहीं डालती है। याद रखो, याद रखो, याद रखो, ये पर्दा फर्ज है, पर्दा फर्ज है, पर्दा वाजिब है, पर्दा हर औरत को करना लाजिम है। हर मुसलमान मर्द को अपनी आंख का पर्दा करना लाजिम है, अपनी निगाहों को झुकाना लाजिम है। याद रखो, इन बेपर्दगियों की वजह से आज हिंदुस्तान के कर्नाटक में माहौल बना कि हिंदुस्तान के कर्नाटक में जब लोगों ने पर्दा करना छोड़ दिया, मुस्लिम औरतें बेहयाई के साथ निकलना शुरू कर देती है, मुस्लिम औरतें अपने लिए पर्दे को लाजिम नहीं करती है, तो कर्नाटक की सरजमीन पे हिंदुस्तान में हिजाब के खिलाफ लोग आवाज उठाने लगते हैं। अगर आप आज भी देख लीजिए, आज मुसलमान नौजवान दाढ़ी नहीं रखता है, दाढ़ी काटा होता है, अक्सर नौजवान दाढ़ी नहीं रखते हैं, तो मेरी कौम काफिर ने क्या समझ लिया है, इन काफिर कौमों ने समझ लिया है मुसलमान के यहाँ दाढ़ी रखना लाजिम नहीं है, मुसलमान के यहाँ पर्दा करना लाजिम नहीं है, मुसलमानों के यहाँ नमाज पढ़ना लाजिम नहीं है। इस वजह से जब कोई मुसलमान बंदा फौज में भर्ती लेता है तो फौज में भर्ती लेने वाले की अगर दाढ़ी है तो उसको वापस कर दिया जाता है, लेकिन अगर सिख कोई दाढ़ी रख करके अगर फौज में भर्ती लेता है तो सिख को रख दिया जाता है। इस वजह से सिख कौम ने पैगाम दिया, हाँ दाढ़ी मेरा मजहबी फरीदा है, तो सिख कौम को रख दिया गया और मुसलमान कौम ने ये पैगाम दिया कि दाढ़ी मेरा मजहबी फरीदा नहीं है। लेकिन याद रखो, आज माँ बहनों को बेपर्दा घुमाने वालों और माँ बहनों के साथ आज बेपर्दगी से पेश आने वालों, याद रखो मुस्तफा जाने रहमत का फरमान है, मेरे आका इस्लाम ने इरशाद फरमाया है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक में है, मुस्तफा फरमाते हैं तय्यूस कभी जन्नत में नहीं जाएगा, तय्यूस जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह तय्यूस कौन है, मनी तय्यूस या रसूलल्लाह ला अअलमहु, आका मैं तय्यूस को नहीं जानता, तय्यूस किसे कहते हैं। मुस्तफा फरमाते हैं हाँ सुनो, तय्यूस वो बंदा है जो अपने घर वालों को बुराई के आलम में देखे, जो अपने घर वालों को बेहयाई में देखे, बेहयाई में मुब्तला देखे और अपने घर वालों के साथ रोक टोक न करे, उन्हें न टोके, उन्हें बुराई से न रोके, वो तय्यूस है। और एक हदीस पाक में मुस्तफा ने फरमाया ऐसा तय्यूस बंदा ये जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जरा अपने घरों के माहौल का जायजा लें, आप अपने घर की औरतों को पर्दा करवाना लाजिम समझते हैं कि आप दोस्त अहबाब से पर्दा करवाते हैं, कि आप रिश्तेदारों से जो गैर महरम है उनसे पर्दा करवाते हैं, कि आप मार्केट में बगैर हिजाब के जाने से उन्हें रोकते हैं, नहीं रोकते हैं, तो आप अपना
अपना जायजा लीजिए। और आज ये टीवियों का सिलसिला, आज ये टीवियों पर बैठ करके जो सीरियलों के झमकटे देखे जाते हैं, क्या इसमें हया के मनाजिर दिखाए जाते हैं? नहीं नहीं, इसमें हया के मनाजिर नहीं दिखाए जाते हैं, इसमें बेहयाई के मनाजिर दिखाए जाते हैं। हे मुसलमानों, पर्दा लाजिम है, पर्दे को लाजिम कर लो। और पर्दा लाजिम किस तरह से है? इस तरह से पर्दा लाजिम है जिस तरह सैयदा फातिमा ने पर्दा किया था, जिस तरह जनाबे सौदा ने पर्दा किया था, जिस तरह जनाबे खदीजा ने पर्दा किया था, जिस तरह जनाबे ज़ैनब ने पर्दा किया था, और जिस तरह करबला वालियों ने पर्दा किया था कि करबला में बाप कुर्बान है, बेटा कुर्बान है, भाई कुर्बान है, भांजा कुर्बान है, और मोहम्मद कुर्बान है, अली असगर कुर्बान है, अली अकबर कुर्बान है। मगर करबला की नौशिबाएं, करबला की औरतें, अहले बैत नबूवत के खानदान की औरतें अल्लाहु अकबर पर्दे को ऐसा लाजिम करती है, इमरजेंसी के हालत में वो पर्दा करती है। और याद रखिए, जब आप पर्दा कराएंगे तो औरतों के कैसे बच्चे पैदा होंगे। मैं एक मिनट में ये वाक़या बयान करता चलूं कि अल्लाहु अकबर, मैं अर्ज़ करता चलूं, आप अगर पर्दा कराएंगे तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने अख़बारुल अख़यार में ये वाक़या नक़ल फरमाया है। फरमाया दिल्ली में एक मरतबा कहत पड़ा, दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है, पूरी दिल्ली के लोग परेशान हैं, बारिश के लिए जाए तो कहाँ जाए, बारिश कैसे होगी। दुआ पे दुआ किए जा रहे हैं, हाथ पे हाथ उठाए जा रहे हैं, लोग मैदानों में जा रहे हैं, नमाज़ इस्तिस्क़ा पढ़ रहे हैं। अल्लाह बारिश नाज़िल फरमा दे। चरिंदो परिंदो परेशान है, जानवर परेशान है, नबातात परेशान है, मौला बारिश नाज़िल फरमा दे। बारिश नहीं नाज़िल होती है। उस वक्त के वली लोग दौड़े दौड़े, उस वक्त के वली सैयदना शेख अबुल मुअय्यद निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि के पास पहुंचते हैं और अर्ज़ करते हैं, हे निज़ामुद्दीन हाथ दुआ फरमाइए, हे निज़ामुद्दीन आप दुआ कर दीजिए, अल्लाह बारिश नाज़िल फरमाए। सैयदना निज़ामुद्दीन अबुल मुअय्यद रहमतुल्लाह अलैहि अपनी माँ के आंचल का एक रेशा उठाया और माँ के आंचल के रेशे को उठा करके रब की बारगाह में पेश फरमाया और अर्ज़ करते हैं अपने रब से, हे अल्लाह ये उस माँ के आंचल का, हे अल्लाह उस माँ के आंचल का तुझे सदका जिस माँ के आंचल को कभी गैर महरम ने नहीं देखा है। हे अल्लाह बारिश नाज़िल फरमा दे। सैयदना शेख निज़ामुद्दीन अपना अर्ज़ करते हैं कि दुनिया देखती है, अल्लाह उस माँ के आंचल का लिहाज फरमाता है और जमा जमा बारिश नाज़िल होना शुरू हो जाता है। जमा जमा बारिश होना शुरू हो जाती है। मैं अर्ज करता चलूं, भाइयों आप जलसे में आए हैं, पैगाम लेकर के जाएं, माँ बाप की खिदमत का पैगाम लेकर के जाएं, उलमा की इज्जत का पैगाम लेकर के जाएं, तलबा को इल्म दीन सिखाने का पैगाम लेकर के जाएं, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने का पैगाम लेकर के जाएं। और इन सब पैगामों में सबसे ऊपर पैगाम जिसको रखिए वो ये रखिए कि अपनी माँ बहन और अपने घर वालों को पर्दा कराना है। अगर आज आपने पर्दा नहीं किया तो याद रखो कल मैदान महशर में खुदा तुमसे पूछेगा और फरमाएगा, ए भाई तेरी बहन तेरी गैरत थी, तूने अपनी बहन को पर्दा क्यों नहीं कराया। ए शौहर तेरी बीवी तेरी गैरत थी, तूने अपनी बीवी को पर्दा क्यों नहीं कराया। हे बेटे तेरी माँ तेरी गैरत थी, तूने अपनी माँ को पर्दा क्यों नहीं कराया। तूने अपनी माँ को और अपनी बहन को अपनी बीवी को बेहयाइयों में क्यों रहने दिया। इस वजह से आज इस जलसे से पैगाम लेकर के जाएं कि पर्दा लाजिम है, पर्दा फर्ज है, पर्दा कराएं और माँ बाप की खिदमत करें। इंशाअल्लाह किसी मौके पर अगर तफसीली वक्त होगा खूब लंबा चौड़ा बयान भी होगा। अल्लाह बस इसी पर अमल की और इसी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।